नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। गुरुजी महाराज की संगत विकास राय चौहान अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से आज विकास अंकल एक सत्संग पढ़ेंगे। ये सत्संग जगवीर सिंह ग्रेवाल अंकल का लिखा हुआ है, जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गुरु परिवार की तरफ से विकास अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आज का जो सत्संग है उसको नरेट करके बाद में अपने सत्संग भी करें। ओवर टू यू विकास अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू वासन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत के चरणों में, गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन। आज इट्स अ वेरी प्लेजर टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच गुरु जी। दया करें। सो सत्संग स्टार्ट करेंगे। गुरु जी स्टीयर्स कार 100 किलोमीटर्स विदाउट पेट्रोल। सो संगत जी, ये सत्संग है ग्रेवाल अंकल का। Mr. Grewal, a businessman, happened to be at his father-in-law's place in the Punjab Agriculture University when Guruji arrived there with some devotees. It was late at night and everybody had langar. So Guruji पहले कहीं पे भी किसी भी टाइम पहुंच जाते थे। गुरुजी है तो वैसे हमेशा हर जगह पे, बट गुरुजी के जो इंस्टेंसेस थे, सो ही नेवर वाज अ पर्सन जिनको कभी नींद आती हो या जो कभी कुछ और सोचते हैं। ही वुड नेवर स्लीप। आई हैव personally seen that. Mr. Grewal had to take Guruji back to temple at Jalandhar. Guruji and he started out in a Maruti 800 and had gone some distance when Mr. Grewal realized that there was very little petrol in the car. He was worried. He was quite sure no petrol pump would be open at that time. It was the early 90s, the heydays of terrorism in the state of Punjab, and uh, and people shut shop quite early. Mr. Grewal also knew that at late night hours, both policemen and terrorists prowl the roads. सो ये टाइम है 1990s का, जिस टाइम पे पंजाब में टेररिज्म काफी ज्यादा अग्रसर था। शाम को लोग अपनी दुकानें जल्दी बंद कर देते थे, इंक्लूडिंग पेट्रोल पंप्स, एंड रात को बहुत डर लगता था लोगों को ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज वो 1980s और 1990s का टाइम था जब टेररिज्म काफी ज्यादा हाई था। एंड मिस्टर ग्रेवाल जी बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल काफी कम था। Sitting next to him, Guruji immediately read his mind and told him not to be afraid. Why are you so worried? Mr. Grewal remembers Guruji telling him, we have enough petrol, just keep driving. Mr. Grewal drove on, but he knew the petrol was uh, going to give out sooner rather than later. So, जब मैं ये सत्संग पढ़ रहा था, तो गाड़ी का पेट्रोल तो ऑब्वियसली इज वेरी फिजिकल थिंग। मगर अगर आप कभी ये चीज जाने कि हमारी लाइफ का पेट्रोल इज जो हमें एनर्जी चाहिए, जो हमें ऊर्जा चाहिए, जो हमें थॉट्स और पॉजिटिविटी चाहिए, जब वो आपको पता चले कि आपके कम हो रहे हैं, आप दुखों और टेंशनों से घिर रहे हो, जब आपका अपना पेट्रोल कम हो रहा हो, तब गुरुजी को आप ये माने कि गुरुजी आपके साथ खड़े हैं और बोल रहे हैं कि चिंता क्यों कर रहे हैं। आई बिलीव पेट्रोल गाड़ी का एक फिजिकल चीज है, बट हमारी सबकी लाइफ में हमें अपना एनर्जी और पेट्रोल चाहिए। और गुरुजी का आगे हम सुनते हैं। दे had reached Guraya midway on Ludhiana and Jalandhar road. And since Guruji had spoken, when Mr. Grewal felt doubts forcing their way into their minds again, Guruji responded immediately once again with his reassurance. You are still worried? Keep driving confidently. We have enough petrol.
At his words, Mr. Grewal suddenly realized that they had driven 40 kilometers from Ludhiana on an amount of fuel that would have not have taken them beyond 4 kilometers. He realized that a divine will was fueling his car, not petrol. Soon, they reached the Jalandhar temple without any problems. At that end of the journey, Guruji said, "See, I have driven that car without petrol, but be sure to put petrol in the morning. The car will not run without it then." Mr. Grewal says that after his personal experience of the divine force, he surrendered himself to Guruji. He found that Guruji was not an ordinary saint or a pandit. He is far, far above them. He is the Sadguru, true Guru. सो आप ये देखें कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और गुरुजी गाड़ी को चला रहे हैं। हमारे अंदर हमारी जो सांसें हैं वो भगवान चला रहा है। हमारे अंदर जितने भी इच्छाएं हैं, जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी हमें चीजें चाहिए, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है। पेट्रोल डालने वाले गुरुजी हैं, गाड़ी देने वाले गुरुजी हैं। सो अगर आप ये चीज को लिटरल सेंस में लें या उसको आप मेटाफिजिकल सेंस में लें, इट इज अ वेरी ग्रेट फिनोमिनन। आफ्टर 80 इयर्स, सो अब दूसरा सत्संग स्टार्ट करते हैं, या पहले पे हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो जब भी हम सोचते हैं कि हम दुखों से निराशाओं से भरे हैं, हमारे एनर्जी का, पॉजिटिविटी का और सक्सेस का हमारा पेट्रोल कम होता जा रहा है लाइफ में, उस टाइम पे बस गुरुजी को याद करें और गुरुजी का अपने आवाज में, अपने कानों में आवाज सुने, या जस्ट इमेजिन करें कि आप गुरुजी की संगत में बैठे हैं और गुरुजी आपके सर पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ। आई बिलीव दिस मैसेज इज वेरी पावरफुल मैसेज कि गुरुजी जो चीजें नहीं हो सकती, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, उनको भी गुरुजी इतनी सादगी से, इतनी आसानी से उनको पॉसिबल बना लेते हैं कि आप सोच भी नहीं लग सकते इन चीजों को। अब हम दूसरा सत्संग उनका सुनते हैं। आफ्टर 80 years, water fills Rajasthan well. There are no limitations to Guruji's grace. His is a power of compassion that towers above all. So it was in Jaipur when lakhs received Guruji's blessings. Guruji Maharaj had gone there in 1994 and stayed with Brigadier, now retired General Mohan Singh, for a month. Hundreds would come to his darshan. They came from the desert of the Rajasthan in bullock carts and tangas, and they came with their worries and problems. Through a glance or a benediction given through the means of a copper tumbler, Guruji would help them. His devotees, Mr. Grewal being one of them, would act as interpreter for the people. सो गुरुजी हमेशा से अ, अपनी कृपा हर एक पे देते रहे, एंड चाहे वो अपनी नज़र से हो, अपनी फ्रेग्रेंस से, अपनी आवाज़ से, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कॉपर का लोटा ब्लेस कर दिया। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट, गुरुजी ने मेरे को बोला था किसी के लिए और कॉपर लोटा लेके जाने के लिए, एंड आई वाज एबल टू डू दैट। सो गुरुजी के तरीके अलग हैं। जो कॉपर का लोटा कई बार संगत को खुद नहीं लेना होता, कोई और उनको देता है। तो गुरुजी जो कल्याण करते हैं वो हर एक का कल्याण करते हैं। उनका, जो उनकी संगत की हेल्प कर रहा है, जो संगत को साथ में लेके आ रहा है, और वो लोग जो ऑलरेडी दुख तकलीफों के अंदर गुजर रहे हैं। गुरुजी इज देयर विद एवरीवन। तो ये राजस्थान के अंदर ये नैरेट है इंसिडेंट, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। He remembers how once the members of a panchayat approached Guruji with a peculiar problem. The community well had been dry for 80 years. Could Guruji get it to fill with water? सो आप ये देखिए कि राजस्थान रेगिस्तान डेजर्ट है और वहाँ पे जल ही जीवन है इज अ रियलिटी। एंड गुरुजी तो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे लोगों को उनकी ज़रूरत हो।
उस टाइम पे तो फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, तो फिजिकली जाते थे। अभी तो उनको बॉडी का कोई बंधन ही नहीं है। अभी तो शरीर का गुरुजी को कोई बंधन ही नहीं है। अभी तो समय का कोई बंधन नहीं है। पहले भी गुरुजी किसी भी टाइम किसी के वहां पे जाके दर्शन कर लेते थे। वो बता देते कि फला फला मैं तुम्हारे घर आया था, मैंने देखा तुमने वहां पे वो फोटो लगाया है, ये किया हुआ। जब पहले भी गुरुजी कर लेते थे, अभी तो गुरुजी के इतने ज्यादा करिश्मे और इतनी ज्यादा उनके करामात दिख रही है, बिकॉज अभी वो समय के बंधनों से, शरीर के बंधनों से पहले भी परे थे, बट अभी तो आप उनको याद करो वो क्षण में आ जाए। 3 days later, the answer was a very loud yes. Through the streets of Jaipur, the villagers came as a party, making many celebrations with drums along the way and chanting, Guru Baba, the water has come. Guruji advised the exhilarated villagers never to sell the water. Others who came to him were similarly relieved, whether they were plagued by disease or agitated by mental conflict or family strife. It was not only the commoners who were blessed when Maharaj, the major, Bhavani Singh came. He was carried up to Guruji by 4 people. A few days later, he was healthy enough to walk around. So, Guruji जो गुरुजी के पास पंचायत वाले जो लोग आए थे, जिनका राजस्थान में गांव था और जहाँ पे 80 साल से उनका कुआं सूखा हुआ था। एंड गुरुजी के दया से जब वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने उनका जो पुराना सूखा हुआ गांव में वेल था, जो कुआं था, उसमें दोबारा से पानी लिया। तो ये करिश्मे गुरुजी के बचपन से ही गुरुजी करामाती रहे हैं। लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बता रहे हैं कि जिनके अंदर मेंटल इश्यूज थे, फिजिकल एलिमेंट्स थी, बीमारियां, दुख, तकलीफ, ये सारी चीजें गुरुजी हरने वाले हैं। एक और इंसिडेंट बता रहे हैं जिसमें महाराज भवानी सिंह जी गुरुजी के पास आए थे। वो जब आए थे तो उनको लोग उठा के लेके आए थे, वो चल नहीं सकते थे, बट कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गए। सो गुरुजी तो ऐसे हैं कि आपके लाइफ में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी आपको परेशानी हो, आप गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी से जुड़े, आप उनके चरणों में बैठे। अगर कुछ नहीं है तो बस आप सत्संग, शब्द कीर्तन लगा लीजिए। और शब्द भी आपको धीरे धीरे, एक बार शायद समझ ना आए, बट धीरे धीरे जैसे शब्द गुरबानी आपके बार 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 चलेगी, आपको शब्द समझ आने शुरू होंगे। जैसे बोलते हैं कि रसरी आवत जातते, सिल पर परत निशान। जैसे शब्द की अ, अ, ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करेगी, जैसे वो आपके अंदर धीरे धीरे आएगी, वैसे ही आपको सारी चीजें समझ आने लगेंगी। आपको शब्द के मतलब समझ आने लगेंगे। एंड यही गुरु जी की करामात है। सो आई एम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड, राइट? आई कैन, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज एज सच। बट देन शब्द गुरबानी मैं पहले उतनी नहीं सुनता था, लेकिन जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ, जब से एम्पायर से जाके हाजिरी लगानी शुरू करी, तो वहां पे सिर्फ हमारे शब्द गुरबानी चलती थी। स्टार्टिंग में तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत आती है। पेरेंट्स पंजाब से हैं, बट वी वर नॉट देयर इन ऑल द टाइम। बट देन शब्द गुरबानी एक ऐसी चीज है विच ग्रोज ऑन यू। आपको अभी शायद समझ ना आए अगर आप नए जुड़े हैं। अगर आप पुराने जुड़े हैं तो आपका तो आंख बंद करते ही आपका ध्यान लग जाएगा जब शब्द गुरबानी चलेगी। सो हम इसको आगे लेके चलते हैं कि गुरु जी की और करामात देखते हैं। डायमंड्स एंड पेटल्स आउट ऑफ थिन एयर। सो हमने देखा कि गुरुजी कार में जिसमें पेट्रोल नहीं है, उसको बिना पेट्रोल के काफी लंबा, 100 से ऊपर 200 किलोमीटर लेके जाते हैं। हमने देखा कि गुरुजी कुएं के अंदर
पानी ले आते हैं जो 80 साल से सूखा हुआ था। लोगों के दुख हरते हैं। गुरुजी लोगों के पास जाते हैं जहाँ पे दुख तकलीफें हो, ताकि गुरुजी उनका निवारण कर सके। नेक्स्ट हम सुन रहे हैं, समटाइम्स it is just the heartfelt desire of a devotee that gets Guruji, the embodiment of Lord Shiva, who is famed as easily pleased Ashutosh, to respond. So, Guruji शिव जी हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि शिव जी के रूप है, क्योंकि गुरुजी शिव जी हैं। और शिव जी अपने बड़े भोले बाबा हैं। सो आप उनको याद करेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। सो एक इंसिडेंट है। इट सो हैपेंड विद मिस्टर ग्रेवाल्स वाइफ, मिसेस रिम्पल. Guruji was with the Sangat in district Sangrur in Punjab. He asked Mrs. Rimple to come before him and materialize two beautiful diamond studs and place them on her hands. The Guru's present was a gift wrapped in English pound. 12 years after they were gifted to his wife, they still retain a rosy fragrance typical of Guruji's presence. So, जो गुरुजी जो अपने हाथ से गिफ्ट देते थे, जो जिस चीज को टच करते थे, वो चीज अ, गुलाबों की खुशबू से भर जाती। अगर हम देखें, हम भी ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने हमारे घर में जोड़े दिए हैं, और उन्होंने अपने पहने हुए जोड़े दिए हैं। एंड वो दिए थे लगभग 2005 2006 के आसपास। उसको 20 साल से ऊपर हो गए, और अभी भी उसमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। ऐसी कौन सी परफ्यूम है जो 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक फ्रेग्रेंस रहे? सो ये गुरुजी हमेशा थे, और अपनी फ्रेग्रेंस से अपनी संगतों को बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं ये बताने के लिए अपनी संगत को कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड at other times, Guruji gives specially needed blessings. New Year's Eve was being celebrated by the Sangat at the residence of Mr. Grewal's father-in-law. Suddenly, a shower of petals came forth from the air and continued falling on his father-in-law for a couple of minutes. Another 10 minutes later, a lady devotee, Mrs. Bardhan, was similarly blessed. The miracles showed the Guruji's love for his disciples. For, as Mr. Grewal says, Guruji needs nothing from you. In fact, he takes your misery causing karma upon himself to relieve you of suffering. All he wants is your love and faith. Satsang, as narrated, of Mr. Grewal, Gurgaon based businessman. जय गुरु जी। सो ये जो सत्संग है कि गुरुजी कहीं से भी कुछ भी प्रकट कर देते थे। एंड वी आर ब्लेस्ड, बोथ मैं और मेरी वाइफ, हम ब्लेस्ड हैं कि हमने अपने आंखों से देखा है गुरुजी को चीजें प्रकट करते हुए। लगभग 2006 का टाइम होगा। अम, हम गुरुजी के मंदिर में बैठे होते एम्पायर स्टेट में। एंड शाम का टाइम था, लंगर हो चुका था, थोड़ी संगत थी, ज्यादा संगत नहीं थी उस टाइम पे। हम बैठे हुए थे, एंड सडनली गुरुजी के चरण एक अंकल दबा रहे थे। एंड सो गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में आते थे, तो सबसे पहले आप एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं अराउंड 7 बजे के आसपास, बार खुलते हैं, तो हम तो कोशिश करते थे जल्दी पहुंचे। उसके बाद आप जाते हैं, आप बैठते हैं, चाय प्रसाद आता है, शब्द गुरबानी के मधुर आवाज आपकी कान में पड़ती है। धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू होता है। उसके बाद आप गुरुजी आते हैं, और गुरुजी आके हमेशा
बैठ जाते। पहले गुरुजी जब आप 7 बजे अगर वहाँ पहुँचते थे, तो वहाँ पे गुरुजी कैजुअल अपने कपड़ों में बैठे होते थे कई बार। टी-शर्ट पहन के आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के बैठे होते थे। साइड में उनका कपबोर्ड था, वहाँ पे उसमें बैठे साइड बोर्ड पे और फिर गुरुजी जाते थे, तैयार होके फिर वापस आते थे, फिर अपने सिंहासन पे बैठते थे। और गद्दी पे बैठने के बाद थोड़ी देर बाद फिर शब्द गुरबानी चलने के बाद गुरुजी की आज्ञा से फिर लंका प्रसाद होता था और फिर उसके बाद गुरुजी वापस जाते थे और फिर गुरुजी दोबारा अपने कैजुअल कपड़ों में आके अपने गद्दी पे बैठते थे और उसके बाद धीरे धीरे संगत को गुरुजी भेजना शुरू करते थे या गुरुजी की आज्ञा लेके संगत अपने आप वापस जाना शुरू करती थी। तो ये उस टाइम की बात है जब लंगर प्रसाद हो चुका था। गुरुजी अपने जो फैशनेबल या जो उनके गुरु वाले जो गद्दी वाले चोले हैं, उनको चेंज करके गुरुजी अपनी कैजुअल ड्रेस में बैठे थे। टी-शर्ट पहनी थी उन्होंने ऐसे ही ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी थी, जो मेरे को याद है उस टाइम पे और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। हम शबद गुरबानी चल रही थी उसके टाइम पे भी एंड हम हमने देखा कि गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और हाथ पहले उनका थोड़ा मुट्ठी ऊपर करी और धीरे-धीरे उन्होंने अपना जैसे हाथ खोलना शुरू किया, एक उनके हाथ में लड्डू प्रकट हो गया। टी-शर्ट पहनी है, हाथ मुट्ठी बंद है और जैसे-जैसे वो हाथ खोल रहे हैं, एक लड्डू उनके हाथ में प्रकट होना शुरू हो रहा है और वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एकदम से उस टाइम पे बैठे-बैठे पूरे हॉल के अंदर एम्पायर सेट में गुलाबों की खुशबू आनी शुरू एकदम से बहुत तेज गुलाब की खुशबू और गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे किया और इतना बड़ा लड्डू गुरुजी के हाथ में प्रकट हो गया। तो गुरुजी ने लड्डू को पकड़ा, अपनी आंखें बंद करी और उन्होंने और उस टाइम पे वो ऐसा टाइम था कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस गुलाबों की उस टाइम पे एंड वो उन्होंने सचखंड से प्रसाद प्रकट किया था। वी वर ब्लेस्ड एट दैट टाइम कि गुरुजी ने छोटे-छोटे टुकड़े हर एक संगत को दिए एंड वी आर ब्लेस्ड दैट हम उस प्रसाद को थोड़ा-सा ग्रहण कर पाए। ये गुरुजी की दया है एंड अभी भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ हो सकती है। आँखों देखी अ, फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा, इतना एटमॉस्फेयर जैसे आप पता नहीं कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए। सो गुरुजी कुछ भी कर सकते कहीं से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। सो ये था सत्संग अ, ग्रेवाल अंकल जी का और थोड़े माय सत्संग ऑन दैट एंड सो अभी आई विल स्टार्ट विद माय पार्ट। मैं अपने थोड़े से सत्संग शेयर करना चाहूँगा बट मैं अपने क्या सत्संग शेयर करूँ। हम तो अपने अंदर कुछ नहीं है, जो भी है सब गुरु ने किया है। मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है कि गुरुजी ने हमें अपने पास आने का टाइम दिया, अपने पास बैठने का टाइम दिया एंड हमारी तो कोई औकात नहीं, हम तो कुछ नहीं है। आई रियली डोंट नो, मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि गुरुजी ने हमें कैसे चुना। इट इज़ वेरी हमारी तो कुछ अम, हम सोच भी नहीं सकते बिकॉज़ अगर आप देखें, वी आर नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग बिज़नेस फैमिली या बहुत आप अमीर घराने से हैं या व्हाटएवर इट इज़, राइट? So we are from a general middle class family with good ethical and moral values. And गुरुजी के लिए कभी कोई चीज़ मैटर नहीं करी कि आप कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, आप कैसे आप उनके पास आ रहे हैं, आप कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, आप तो चढ़ा ही नहीं सकते
क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम कुछ चढ़ा सकें गुरुजी के सामने या हम कुछ कर सकें उनके लिए, बिकॉज़ हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो करना है गुरुजी ने करना है। सो सबसे पहले तो जो मैं देखता हूँ कि हमारे पास तो काबिलियत नहीं है, जो भी हमारे गुरुजी के साथ जुड़ने का टाइम है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है गुरुजी ने करना है। एंड उनकी दया है, आपको कब आपके साथ आए और आपके एक्चुअली कब आपके साथ आए एक रॉन्ग वर्ड है। गुरुजी हमेशा से आपके साथ है, हमेशा से हमारे साथ है। हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमारे साथ है, लेकिन किसी भी आप प्रॉब्लम से निकल रहे हो, किसी भी आप ऐसे टाइम से निकल रहे हो कि आपको लगता है कि अब बस बहुत हो गया, बट फिर भी आप उन कठिन टाइम से निकल जाते हो बिकॉज़ गुरुजी आपके साथ हमेशा है। ऐसा नहीं कि गुरुजी आपके साथ हैं तो हमेशा से अच्छा टाइम, बट गुरुजी अगर आपके साथ हैं, तो आप दुखों के अंदर भी, घोर अंधकार के अंदर भी आपके मन में एक आशा होगी कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और यकीन मानो, आप उस टाइम से इतनी आसानी से निकल जाओगे। हाँ, उस टाइम पे कठिन लगता है वो समय, बट जब गुरुजी आपके साथ हैं, आप बस ये समझिए और आपका जो भी टाइम है आपका आराम से निकल जाएगा। सो गुरुजी से जब पहली बार मैं मिला था, 1980s का टाइम था, 1984। आई वाज़ प्रीटी यंग एंड मुझे अभी भी याद है, जलंधर मंदिर में उनसे पहली बार मिला था मैं, या पहली बार उन्होंने अपने अपने पास बुलाया था। हम तो जा नहीं सकते, हम तो वैसे भी उस टाइम में छोटे थे, तो हमारे तो बस में कुछ था ही नहीं। अभी भी हमारे बस में कुछ नहीं है। सो गुरुजी के पास गुरुजी ने बुलाया, 1984 का टाइम था एंड जलंधर में अ, हम रह रहे थे। फादर साहब की पोस्टिंग फील्ड एरिया में थी और मेरी मदर सुभाष रानी चौहान आंटी और मैं, हम जलंधर में रहते थे। और मेरी मासी वीना मासी और शेखर मासा जी, वो हमारे पास कनाडा से आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आपको गुरुजी के पास लेके चलते हैं। सो हमारी बड़ी अच्छी किस्मत थी उस टाइम कि हम गुरुजी से मिल सके। एंड 84 के टाइम पे मेरे को याद है अभी भी, मैं जलंधर मंदिर जब एंटर हुआ, गुलाबों की फ्रेग्रेंस आ रही थी उस टाइम पे भी। आई वाज वेरी यंग, मैं छोटा था, लेकिन अभी भी मेरे को याद है। आई वुड हैव बीन अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 साल का था मैं उस टाइम पे। एंड या थोड़ा सा बड़ा होगा। एंड उस टाइम पे जब गुरुजी के पास गए, तो देखा कि उनसे आंखें ही नहीं मिल पा रही थी। Even as a young child, I could sense that there is a powerful presence. आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे आप। सो गुरुजी ने बुलाया, चरण दबाने के लिए बोला। आई स्टिल रिमेम्बर, गुरुजी ने ब्लैक कलर के सॉक्स पहनी हुई थी और मैंने चरण दबाने शुरू किया। फिर एकदम से गुरुजी ने बोला बस करो। And गुरुजी के अपने तरीके हैं। गुरुजी को पता है कि आपको कैसे ब्लेस करना है, आपको क्या सेवा देनी है। सो 80s के टाइम के बाद फिर हमारा गुरु से थोड़ा कांटेक्ट थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद गुरुजी की आज्ञा से एक्चुअली हमें लगता है कि हमारा टाइम कब आ रहा है, हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, बट हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हमारी गाड़ी ना हमारी है, ना पेट्रोल हमारा है। सो गाड़ी मतलब हमारा शरीर भी गुरुजी ने दिया है, और उसमें जो चीज़ चलने की एनर्जी है, जो पावर है, वो भी गुरुजी ने दी है। गाड़ी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस टाइम पे किस जगह पे उसको पहुंचाना है, सब चीज़ें गुरुजी के हाथ में है। सो 80s के बाद 2000, 20 साल हो गए। उसके बाद अराउंड 15 साल के बाद आई वॉज इन दिल्ली अगेन। एंड
एम्पायर स्टेट मेरा जाना हुआ, क्योंकि वीना मासी जो वहाँ पे है वो हमारे मेरी मासी हैं, और जो एम्पायर स्टेट है सुधान आंटी, वो मासी जी की ननद है। तो वो कनाडा से जब भी आते थे एम्पायर स्टेट रुकते थे वो। तो मैं उनसे मिलने गया, एंड वहाँ पे एक मेरे को गुरुजी का स्वरूप मेरी मासी ने दिया। तो उसके बाद फिर से तो मेरे को तो याद उतना नहीं था, बट फिर एकदम से याद आया, हाँ ये तो गुरुजी हैं। फिर 2000 के बाद फिर दोबारा गुरुजी ने अपने पास बुलाना शुरू किया। um, and a lot of you might not know me, so मेरा बैकग्राउंड शेफ का रहा है एक टाइम पे, एंड गुरुजी ने इट्स नॉट इजी टू बी अ शेफ इन अ 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी, ऑल्दो आई वाज प्रीटी वेल फ्लाइंग, मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था 5 साल के अंदर। आई वाज अ सीनियर सू शेफ, अ पेस्ट्री शेफ फॉर अ 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी आईटीसी मॉरिशटन, वो भी गुरुजी की दया से। सो गुरुजी ने, मैं काफ़ी जगह पे था, सो गुरुजी से दोबारा मिलने से पहले 2004 में अगेन आई वाज इन कैलकाटा एट दैट टाइम। जब गुरुजी का टाइम आता है, जब आपको उन्होंने अपने साथ लगाना होता है, तो वो आपकी कंडीशनिंग करना शुरू करते हैं। कंडीशनिंग कैसे होती है? या तो आप गुरु से या भगवान से आप जुड़ना शुरू होते हैं, एंड आप सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करते हैं कि लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या आपको भगवान या अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सो अराउंड 2004 के आसपास आई वाज इन कैलकाटा। वहाँ पे फ्लीलीज का मैं रीलॉन्च करा था, उसके साथ में म्यूजिक वर्ल्ड करके एक शॉप थी, एंड आई वाज ब्राउजिंग दैट प्लेस, एंड सडनली मेरे को एक सीडी बड़ी अच्छी लगी। और वो सीडी मैंने uh, अपने ऑफिस में जाके और अपने घर पे हमेशा वो सीडी चलती थी, वो थी गुरु मंत्र। तेरी हर मुश्किल आसान, तू कर ले गुरु का ध्यान। उसमें और भी बहुत सारे अम, बड़े अच्छे अच्छे भजन हैं। तो अराउंड दिन में 20 घंटे मेरे कानों में ये भजन चलने शुरू हो गए, और कुछ टाइम बाद आई वॉज फॉर्चुनेट, आई गॉट मैरिड, एंड देन आई वॉज फॉर्चुनेट, गुरु जी के दया से आई वॉज एबल टू जॉइन आईटीसी मॉरिशटन इन न्यू दिल्ली। तो आईटीसी वालों ने हमें अकोमोडेशन दी थी गुड़गांव में, विच इज़ अ नाइस अपार्टमेंट, एंड उसके बाद गुरुजी के पास आना जाना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया। तो गुरुजी की दया है, एंड आई बिलीव हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चॉइस गुरुजी की होती है, कब किसको कहाँ पे कैसे मूव करना, हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमें तो सब सरेंडर कर देना है। एक्चुअली सरेंडर करने का भाव भी हमारा नहीं है, जो हमारे मन में भाव आ रहे हैं वो भी गुरुजी कंट्रोल कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप ये सोचें कि शरीर उनका है, आत्मा उनकी है, भाव उनके हैं, करने कराने वाले वो हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो जो सरेंडर का भाव है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। राइट? आप ये सोचिए, आप तो कुछ सरेंडर कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको कुछ है ही नहीं, आप सरेंडर क्या करोगे? सो गुरुजी, बहुत सारे मेरे को तो एकदम से चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू construct those thoughts because so many thoughts come at the same time. So गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत रही है। सो एक और इंसिडेंट मेरे को याद है, जो गुरु जी बोलते थे स्पेसिफिकली मेरे को, सो मेरे को बोलते थे वकास। राइट, ही नेवर कॉल मी विकास। सो गुरु जी का अपना तरीका बुलाने का, हाँ जी विकास, हाँ जी वकास जी, कितने फिर चलो, फिर वकास जी चलो गुड़गांव। सो दैट वाज हिज वे ऑफ यू नो बीइंग जॉली, एंड वो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी इनसे बात करने के लिए। जो बात करनी थी वो वन साइडेड होती थी, वो बोलते थे और हम सुनते थे। सो 2004 के बाद गुरुजी वॉज वेरी काइंड, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया,
एंड हम शाम को सत्संग जितना हो सकता था चले जाना। एंड वो टाइम था जब मेरी मदर भी मेरे पास आए हुए थे उस टाइम पे। ऑल्दो आई वाज वर्किंग इन दिल्ली एंड गुड़गांव रहता था। तो कभी कभी सुबह पहुंच जाना, सुबह 7 बजे ऑफिस का टाइम होता था, होटल का टाइम होता था। आई वाज अ शेफ एट दैट टाइम। वेरी नॉट एन इजी लाइफ बट या प्रीटी फिजिकल एंड टैक्सिंग एंड टायरिंग। सो गुरुजी ने मदर आए हुए थे हमारे पास, चंडीगढ़ से सुभाष रानी आंटी, एंड हमारी मासी आई हुई थी कनाडा से, जो एम्पायर स्टेट रुके हुए थे। तो कई बार मैंने क्या करना कि जाना, होटल जाते हुए सुबह सुबह मदर को वहाँ पे ड्रॉप करना, राइट। या कई बार उन्होंने हमारे पास आना, फादर मदर ने चंडीगढ़ से आना हमारे पास, और हमने शाम को गुरुजी के पास वहाँ पे सत्संग के लिए पहुंचा। बड़ा अच्छा टाइम था जी। आप पहुंचते हैं 6:30 बजे के आसपास हम पहुंचते थे। वी वुड इंश्योर कि हम पहले पहुंचे, भगवान के पास पहुंच रहे हैं। एंड याद है, एम्पायर स्टेट में गाड़ी बाहर पार्क करके आप अंदर वॉक करते हैं, वॉक करके सड़क में आप थोड़ी सी टेढ़ी होती है फिर सीधी जाती है। फिर आप गेट के अंदर वहाँ पे जोड़े उतारने की जगह है, चौरस वाले टाइल्स लगी है वहाँ पे, जिसमें स्क्वायर स्क्वायर के डिज़ाइन उस टाइम पे होते थे। छोटा सोफा लगा हुआ वहाँ पे, जहाँ पे कई बार चेयर, आपको जूते वगैरह पहनने के यहाँ पे इश्यूज है तो आप वहाँ पे बैठ के आप कर सकते थे। देन फिर मार्बल का फ्लोर गुरुजी का अभी भी याद है मेरे को, वहाँ पे मत्था टेक के फिर धीरे धीरे एक 3 स्टेप थे, आप ऊपर पहुंचते, साइड में कूलर होता था, वहाँ पे ऊपर ग्लास पड़े होते थे। आप कूलर का पानी, अमृत था, अमृत को आप पीते थे, बाहर वेट करते थे। अगर आप लकी यहाँ पहले आए तो आपको लाइन में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, यहाँ पे साइड में जो मार्बल का बना हुआ एरिया, वहाँ पे आप थोड़ा बैठ सकते थे। एंड एग्जैक्ट 7 बजे अंदर से दरवाज़ा खुलता है, गुरुजी के द्वार खोलते हैं, एंड हम अंदर पहुंचते थे। गुरुजी काफ़ी बार तो साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, सो वी वर वेरी लकी। तो गुरुजी के पास मत्था वहाँ पे टेकना। एंड एक बार, सो नई नई शादी हुई थी, 2005 का टाइम था, फादर मदर साथ में आए हुए थे, एंड माई वाइफ हैड नॉट कम एट दैट टाइम। तो सो गुरुजी में मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं, की होया वकास। मैं कहा, कुछ नहीं गुरुजी। हाँ, फिर आज लड़ाई हुई है। मैं क्या, नहीं गुरुजी। ऑब्वियसली दैट वाज, वी हैड यू नो, इनिशियल जब आपकी शादी होती है तो आपके बहुत सारे आपके सेटलिंग इश्यूज होती हैं, मेंटालिटी मैच नहीं करती, काफ़ी सारी चीज़ें आपको, एंड स्पेशली यू नो जब आप इंडिपेंडेंट रहे हैं एंड वो सारी चीज़ें। सो बट स्टिल आई वाज मैरिड अर्ली इन लाइफ, बट देन गुरुजी न्यू। हाँ विकास, फिर लड़ाई हुई है आज? दूसरी बार फिर पूछा। मैं क्या, गुरुजी छोटी छोटी। गुरुजी कहा, ले, छोटी छोटी नहीं, वड्डी वड्डी हुई है लड़ाई आज था। सो आप इमेजिन करें, गुरुजी कुड सी एवरीथिंग, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है। सो एंड आपको ये आप माने कि गुरुजी इज प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट, एंड ही विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट। सो त्रिकालदर्शी नहीं है, वो तो स्वयं काल है। वो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये छोटे एग्जाम्पल है, हमें समझ नहीं आते उस टाइम पे तो, यू नो, बिकॉज यू आर यंग एंड यू नो यू डोंट गिव हीड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट ये बाद में जाके समझ आते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। और गुरुजी के साथ जो चीज़ें होती हैं और जो गुरुजी ने चीज़ बोली होती हैं, या आपको दिखाई होती हैं, भाव आपके आए होते हैं, उनका मीनिंग आपको उस टाइम पे कई बार समझ नहीं आता। वो सारी चीज़ें बाद में अपने आप टाइम के साथ आपको समझ आते हैं कि आप कितने, आप पे गुरुजी की कृपा और कितनी आप पे गुरुजी की मेहर है। ओके, आई जस्ट चेकिंग टाइम की, डू वी हैव टाइम और नॉट। ओके, सो गुरुजी का आशीर्वाद चलता रहा, एंड बहुत गुरुजी ने
अपने ब्लेसिंग्स दी है। एंड सिर्फ हमें ही नहीं, हम तो कुछ नहीं है, गुरुजी ब्लेसिंग्स हमेशा से देते आ रहे हैं। आपने देखा कि राजस्थान में जाके लोगों को ब्लेसिंग दी, अभी आप सुनते हैं कि संगतों को ड्रीम दर्शन देते हैं। गुरुजी हमेशा से ब्लेसिंग्स ही देने आए थे और ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं। अब गाड़ी का आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार जब हम गुरुजी के पास दोबारा हम जाने शुरू हुए, तो मिडिल क्लास फैमिली हमारी, फादर साहब आर्मी में थे, रिटायर्ड कर्नल, मदर सुभाष रानी हाउस वाइफ, एंड आई वाज वर्किंग इन अ होटल। वी आई हैड अ बाइक एट दैट टाइम। उस टाइम पे सीबीसी होती थी, ब्लू कलर की मेरी। तो बड़े प्राउडली हमने इंडिका ली, सेकेंड हैंड, ग्रे कलर की इंडिका थी, सेकेंड हैंड ली थी हमने। एंड एक बार वो तो मैं चला रहा था उसको, इंडिका, मैं, वो मेरे पास थी गाड़ी एंड वो मैं चलाता था उसको। सो उस टाइम पे जब हमने वो ली, एंड वी वर वेरी प्राउड, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली के लिए, चाहे आपके आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली हो, बट फिर भी वो आपकी नई कार है, और वो दैट वाज माय फर्स्ट कार एज सच। सो हम आ रहे थे फ्रॉम जलंधर। हमारा वहाँ पे भी गांव है, और वो काफ़ी लोग हैं वहाँ पे उस साइड में, तो हम जलंधर से आ रहे थे टूवर्ड्स चंडीगढ़। मैं फादर मदर के पास गया हुआ था, एंड आई वाज ड्राइविंग द कार। एंड कार के अंदर मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे साइड में फादर बैठे थे, पीछे मेरी मदर सुभाष रानी बैठे थे, फादर साहब कर्नल चौहान, पीछे सुभाष रानी जी और मेरी दादी बैठे हुए थे कार के अंदर। एंड मेरी वाइफ भी थी उस टाइम पे, कार के अंदर बैठे हुए सारे। हम जा रहे थे, रात का टाइम था, अंधेरे का टाइम था उस टाइम पे। 2000s में इतनी ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती थी सड़कों पे। हाईवे पे जा रहे हैं हम, अराउंड 80-90 की स्पीड होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरे आगे तीन गाड़ियां हैं, और ऑब्वियसली कई बीच में सिंगल रोड थी। तो एक गाड़ी जो सबसे आगे वाली थी, उसने, पता नहीं कौन लोग थे, बट इसने, एक सामने ट्रक आ रहा था, स्लो ट्रक चल रहा था, तो उसको ओवरटेक कर रहे थे वो। तो एक गाड़ी ने किया, दूसरी ने किया, तीसरी ने, चौथा मेरा नंबर था। तो जैसे मैं ओवरटेक करने थोड़ा सा आ गया, मैं देखा सामने छोटी छोटी लाइटें, तो मैं सोचा कोई गाड़ी दूर होगी काफी। तो जैसे ही मैं ट्रक के साइड में यहाँ पे ओवरटेक करने के लिए आया, तो देखा कि वो लाइटें, जो छोटी लाइटें थी, वो गाड़ी दूर नहीं थी, वो ट्रक की जो पार्किंग लाइट होती है, जो छोटी में लाइट होती है, वो थी। और वो कोई छोटी गाड़ी नहीं, वो सामने ट्रक था। तो इधर पे वो ट्रॉली थी जो साइड में, जिसको मैं ओवरटेक कर रहा था, और सामने से इधर से मेरे को ट्रक दिखाई दिया। एंड वो मेरे पास टाइम वॉज वेरी लेस दैट टाइम, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड somehow आई रियली डोंट नो कैसे गाड़ी मैंने बस किसी तरह ओवरटेक करी। तो जो मेरे साइड वाला रियर व्यू मिरर था, वो जो सामने ट्रक आ रहा था उससे टकराया, और सीधा आके मेरे विंडशील्ड पे लगा। सर्दियों का टाइम था, जो मेरा जो विंडो थी, सॉरी, विंडो पे लगा, और विंडो का शीशा टूट के पूरी कार के अंदर फैला। आप इमेजिन करें, साइड में एक गाड़ी, सामने गाड़ी, और आप इमेजिन करें कितना आप उस ट्रक को टच किया है रियर व्यू मिरर ने। तो कैसे कितने आप इमेजिन करें कितने हम उससे बचे होंगे। सो दैट वाज, एंड आई वाज इन अ शॉक, बट वी केप्ट ऑन ड्राइविंग। एंड थोड़ा टाइम बाद हम गुरुजी के पास गए, एंड नॉट ऑन दैट सेम डे, बट कुछ हफ्तों के बाद हम जब गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी, वो बोला, गुरुजी थैंक यू, आपने बचा लिया। गुरुजी के, वो तो मैं कर लिया, हुन गड्डी कट छो। And we being we middle class people, and उस टाइम पे समझ में नहीं होती भाई गुरुजी कौन है, उस टाइम पे तो समझ ही नहीं थी। हमें लगा, मेरे फादर साहब को भी लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं गाड़ी बेच दो, लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल से हमने खरीदी, हम गाड़ी कैसे ऐसे बेचते हैं। हमने वो गाड़ी नहीं बेची। हमें लगा कि हम गुरुजी से ऊपर हैं, या गुरुजी, दैट्स व्हाट, आप पुरानी संगत और नई संगत बोलते हैं। आप नई संगत तो बहुत लकी हो, क्योंकि आप उनको भगवान रूप में देखते हो, और हमने तो उनको जब फिजिकल रूप में देखा है, तो आप देखिए कि आंखों देखी, एंड आंखों के आगे इतना ज्यादा गुरुजी ने पर्दा डाला हुआ था कि उन्होंने एहसास ही नहीं दिए होने दिया कि वो भगवान है। और भगवान बोल रहा है भाई गाड़ी निकाल दो, हमने बोला नहीं,
हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमने बड़ी मुश्किल से पैसे लेके खरीदी गाड़ी, हम कैसे बेच सकते हैं? तो हमने वो नहीं उनकी आगे हमारी। एंड सो वही गाड़ी है जिसमें बाद में एक और एक्सीडेंट होता है, और गुरुजी अपने उसमें बचा लेते हैं लोगों को। सो काफी, उसका भी एक और सत्संग है, वो अगली बार कभी देखेंगे। सो आप देखिए कि गुरुजी एवर प्रेजेंट है, उनको पता है आपको एक एक क्षण में आपको बचाते हैं। आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, एक और मेरे साथ इंसिडेंट है। गुरुजी ने मेरे को बोला था बरिस्ता ज्वाइन करने के लिए, एंड सो आई जॉइन दैट, एंड होटल लाइन के बाद बरिस्ता जब मैंने ज्वाइन किया, इट वाज अ काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉब which had 5.5 days. Wow, ऑफ भी मिलता है, छुट्टी भी मिलती है। That was, so एक one of those days I was just driving from Delhi back to Gurgaon where I was living, and मैं अपनी बाइक पे जा रहा था, और सामने से 2005-6 का 2006 का टाइम होगा, तो अड्डा सफली मार्ग पे जा रहा था मैं, और वहां से सामने से जैसे मैं जा रहा था, बीच में कट था, तो पीपल को टर्न और वट, तो सामने से एकदम से मैं 70 की स्पीड पे हूँ, और सामने एकदम से एक कार आई और उसने यू टर्न लेने के लिए सीधा गाड़ी आगे कर ली बिना देखे। एक लेडी ड्राइव करती, मारुति 800। आई डिड नॉट हैव अ ब्रेकिंग डिस्टेंस, आई डिड नॉट इवन हैव टाइम कि मैं कुछ रिएक्शन कर सकूं, एंड आई वाज लाइक अब क्या करें? द बाइक हिट द कार, एंड इम्पैक्ट वाज सो सिवियर कि जो कार थी मारुति 800, उसका टायर टेढ़ा होके अंदर चला गया, उसका बोनट टेढ़ा हो गया, विंडशील्ड टूट गई, साइड वाला शीशा टूट गया। जो मेरी बाइक है उसका टायर पिचक के टंकी के अंदर तक आ गया, टैंक उसका पूरा अंदर स्क्वैश हो गया। जैसे इम्पैक्ट हुआ, मैं हवा में उड़ता उड़ता एट और 15 फीट, 20 फीट आगे उड़ के आई रोल्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड। मुझे आप इमेजिन करें, दैट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल एक्सीडेंट, एंड मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को किसी ने हवा में उठा के साइड में रख दिया हो। और इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मेरे पे खरोच थी, सिर्फ एक छोटा सा कट यहाँ पे था, और एक थोड़ा पैर में, थोड़ी सी पैर में चोट लगी थी। आई वॉज इन सेंसेस, आई कॉल्ड अप द HR पर्सन, एंड फिर उसके बाद पुलिस भी आई, बाद में हॉस्पिटल में को शिफ्ट किया गया। एंड जब पुलिस आई तो पुलिस वाला इंस्पेक्टर बोलता, भाई साहब आप जिंदा हो? बोलता, मैंने जिस हिसाब से आपकी बाइक देखी, जिस हिसाब से मैंने गाड़ी देखी, हम तो रोज देखते हैं इन सड़कों पे, गुड़गांव MG रोड वगैरह पे एक्सीडेंट्स, हमें लगा तो आप तो बचे नहीं होंगे, आपको तो कुछ ही नहीं हुआ। एंड गुरुजी ऐसे हैं कि आपको ऐसी ऐसी मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, आपके ऑफिस में परेशानी हो, आपके घर में परेशानी हो, कोई भी चीज हो, गुरुजी को याद करो, आपकी सारी चीजें आपको उठा के, हवा में आप 20 फीट आप चाहे गिरने वाले हो, आपको उठा के ऐसे आपको नीचे रखेंगे कि आपको कुछ ज्यादा होने नहीं देंगे। आपको उस टाइम पे आपको लगा ये क्या हो रहा है, बट गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद यू। सो गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने हमारे कर्मों में क्या क्या लिखा था पता नहीं, बट वो सत्संग अटेंड करने से और सारी चीजों से हमारे सारी लाइफ चेंज हो जाती है। गुरुजी ने ऐसे ही मेरे को होटल लाइन से भी निकाला, परसों में केस। सो आई वाज वी वर वेरी लकी कि हम गुरुजी के पास एम्पायर से जा सकते थे। एंड एक ऐसी शाम थी, नॉन तंग डेज, मेरी मासी आए हुए थे कनाडा से, और मेरी कजन शालिनी थी, वो भी वहाँ पे महाराष्ट्र में थी उस टाइम पे। एंड और रोहित भी आया हुआ था। सो गुरुजी के पास गया मैं शाम को उनसे मिलने भी, और गुरुजी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो गुरुजी कहते, विकास, सो आई वाज द शेफ एट ITC एट दैट टाइम, कहते, विकास आज मन पकोड़े खा tofu there. So although I was a chef, I was not an Indian chef. I was a pastry chef, right? So मैं बोला ठीक है भाई, गुरुजी बनाते हैं बढ़िया आपके लिए पकौड़े। एंड गुरुजी की आ गया थी, एंड फिर आई मेड सम पकौड़ा, उसको काट के अच्छी तरह से बैटर कर बना के, तो गुरुजी ने खाए सारे। एंड लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसको जैसे अगर कोई जलंधर से होगा जिसको पता होगा कि ज्वाले के पकौड़े कैसे बनते हैं, तो उसको ऐसे मैश करके जो क्रम्स थे उसको फिर फ्राई करके अच्छी तरह मसाला वसाला डाल के वो दिया। गुरुजी खा के कहते हैं ये सब तो बढ़िया है।
सो एंड आई बिलीव कि वो टाइम था कि उन्होंने मेरा सारा जो मैंने लाइफ शायद होटल्स में ज्वाइन करनी थी या वहीं पर रहनी थी, कहाँ पे क्या करना था, उन्होंने सारा कुछ समय के अंदर वो सारा उन्होंने सारे काम काट दिए, एंड दे ही मेड मी चेंज माय करियर, एंड ही हैज एक्चुअली टोल्ड मी कि भाई विकास हुने कर। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड इन दैट वे, एंड गुरु जी के अपने तरीके हैं, अपने काम करने के अपने तरीके हैं। हमारी लाइफ की एक्सक्यूज मी, हमारी लाइफ की डायरेक्शन हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारी लाइफ की डायरेक्शन गुरु जी के हाथ। जब हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर रहे हैं, और ये मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो मैं खुद भी अपने आप को सुना रहा हूँ कि कई बार हमें लगता है कि हाँ हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं, और सरेंडर करना भी हमारे हाथ में नहीं है। सारी चीजें गुरुजी ने खुद कहा है अपने अपने मुंह से। जब गुरुजी ने एक बार बड़ा कनेक्शन दिया, एंड सब was crying for a couple of hours, तो गुरुजी ने बोला था उस टाइम पे, सब माया है, जोर जोर से चिल्ला के, सब माया है। एंड अगर आप इस चीज को सोचें कि सब माया है, और सब कुछ जो है is controlled by, not by you but by a supreme power, I believe, और आप भरोसा करते हैं कि गुरु जी हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं माया, उसके अंदर से गुरु जी आपको उठा के साइड में आपको सेफली पहुंचा देंगे जहां आपने पहुंचना है। जो दुख तकलीफें आएंगी आपकी सारी निकल जाएंगी। और गुरु जी बोलते थे, विकास बहुत नाम कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, एंड विद ग्रेस ऑफ गुरु जी, गुरु जी हैज बीन वेरी काइंड। कहाँ मैं आलू प्याज चलने वाला बंदा, उसके बाद इस टाइम पे, सो आई हैव गुरु जी की दया से आई हैव बीन एट वेरी सीनियर पोजीशंस इन लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया, एंड अभी मैं कनाडा में हूँ, और मैं कैनेडियन सिटीजन। ये भी गुरु जी का आशीर्वाद था। मुझे कहते बाहर जा। गुरु जी सो काइंड दैट गुरु जी का अपनापन होता है, और गुरु जी जब आपके पास आते हैं, तो गुरु जी आपके आसपास उन लोगों को भी साथ में लेके आते हैं जो आपकी हेल्प करें। गुरुजी की जो दया है वो ऐसी है कि आपको समझ नहीं आएगी, बट वो पास्ट में भी आपके साथ है, प्रेजेंट में भी आपके साथ है, और फ्यूचर में भी आपके साथ रहेगी। एंड एज ऑफ नाउ बहुत सारी सत्संग और बहुत सारी चीज़ें और हैं, बट देन आई थिंक 1 घंटा हो गया है। सो आई वुड गुरु जी के चरणों में आई वुड गिव माय प्रेयर्स, एंड आई नो कि आपने अपना टाइम दिया गुरु जी की सत्संग में आने के लिए। बड़े टाइम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का समय, ये समय भी हमारे हाथ में नहीं है। ये समय भी गुरु जी ने डिसाइड किया है कि किस टाइम पे कौन संगत में आएगा, कहाँ आएगा। कईयों का आना फिजिकल रूप में देखना इज डिफरेंट, जैसे आपने देखा कि आंखों के आगे माया डाल देते हैं, आपको पता ही नहीं चलने दे रहे थे उस टाइम पे कि वो भगवान है। और अभी जो नई संगत जुट रही है, उनको सीधा भगवान रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो सारी चीजें गुरु जी के हाथ में है। जो करना है, जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, सारी गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। और अगर आप गुरु जी पे भरोसा करें और छोड़ दें कि भाई गुरु जी जो होगा सब आपने करना है, तो गुरु जी को अगर आप मौका देंगे करने का, जो कि वो भी हमारे हाथ में नहीं है, तो गुरु जी आपके साथ हमेशा है।
वो गाड़ी का स्टीयरिंग हम अपने हाथ में कंट्रोल करना शुरू करते हैं, और गुरुजी के कंट्रोल तो गुरुजी के हाथ में है। सड़कें गुरुजी ने बनाई हैं, रूल्स गुरुजी ने बनाए हैं, तो हम तो तब तो छोटे से लोग हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं। हमारी समझ तो है ही नहीं कि हम कुछ समझ पाए। माया का पर्दा गुरुजी ने अपने पूरी दुनिया में इतना डाला हुआ है कि सिर्फ गुरु ही आके आपकी आंखों से माया का पर्दा या आपके माइंड से माया का पर्दा हटा सकते हैं। सो जो आपने आज समय दिया है, अ, और जो आप गुरुजी के सामने अब आए हैं, और जो आपने मुझे, अ, तुच्छ से प्राणी को समय आपने दिया है, थैंक यू सो मच। आई होप कि गुरुजी की संगत हमेशा होती रहे, लोगों के कष्ट कटते रहे, और गुरुजी आप सबका बहुत बहुत कल्याण करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। विकास अंकल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज सत्संग रीडिंग की है, नरेशन किया है, और अपने सत्संग शेयर किए हैं, जो कि हम सब बहुत देर से सुन रहे हैं कि कितनी ब्लेस्ड संगत हैं आप, आपकी फैमिली। 40 साल से ज़्यादा समय हो गया महाराज की कृपा आपकी फैमिली के ऊपर। धन्य हैं आप लोग, धन्य हैं। धन्य है वो माता जिन्होंने इतने अच्छे सुपुत्र को जन्म दिया, सुपुत्रों को जन्म दिया। सुभाष रानी चौहान आंटी जी, उन ओल्ड संगत उनका गुरु परिवार जानता है उनको, और उनकी वो ब्लेसिंग्स हम सब सुनते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये हीरा कहाँ छिपाया हुआ था, ये अभी तक हमको नहीं मालूम था। प्लीज़ आपसे प्रार्थना है गुरु परिवार की तरफ से कि आने वाले समय में जब-जब आपसे समय निकल पाए, प्लीज़ संगत शेयरिंग के लिए आएँ। और जो आपके अभी बाकी सत्संग हैं, अभी तो आपने शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो बहुत सत्संग हैं। इन 40 सालों में, 40 सालों के इतने सत्संग होंगे आपके पास, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, इस समय आप कनाडा में हैं, अर्ली मॉर्निंग है आपकी, 4 सवा 4 बजे होंगे, 5 बज रहे होंगे शायद। तो समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और गुरु बाबा की तरफ से आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज से हम सब आज्ञा लेंगे।